Hello students, welcome to my channel for online classes of social study. Today I will discuss classification of resources. First understand what is classification. Classification is the ordering of things based on similarities and differences for convenient study. So why is classification important? It helps us in the correct identification and helps to develop relation between different groups or things. Means simply it is easy way to remember a things. Now come to slides. As you can see in slide, resources are mainly classified in natural resources and human resources. That is two categories of resources, natural resource or human resource. So first we will understand human resource. See, human resource is the most important because in previous videos I already told you humans is the main driver of nature. Means humans drive the nature and transform the nature into a resource. Nature is a neutral and humans transform it through technology and institutions. So already discussed in previous videos, what is human resource? Human resource is the skill, efficiency, capacity, quality, quantity of human. So further it is divided into structures and institutions, quantity and quality. Structures and institutions means human that make for the transformation of resources such as tools, such as factory, hospitals, schools. Quantity and quality means the human efficiency, human leadership, human skill that is used to make structures and institutions. Now come to natural resources. Natural resources are those resources that are obtained from nature. नेचर से हम लोग को जो भी मिले, लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, सब को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज में रखेंगे. यू कैन सी इन द स्लाइड्स नेचुरल रिसोर्सेज are further divided into renewable resources and non-renewable resources. What is renewable resources? Renewable resources are the resources that can be renewed or replenished naturally. Naturally means like air, water. We are not making it, we are not creating it. Nature itself can replenish them, nature itself can purify them. Renewable resources are further classified into continuous or flow resources and biological resources. Continuous or flow means those resources that have continuous supply over the earth, like air, water, wind. These all are continuously supplying by the earth or by the environment. Now come to biological resources. Biological resources are the biological parts of our environments, such as plants, animals, organisms like microorganisms. Means all the biotic components of our ecosystem can be kept in biological resources. Biological resources are further classified into natural vegetation, forests and wildlife like animals. Now come to non-renewable resources. Non-renewable resources are those resources that cannot be replenished or renewed naturally. जैसे कोयला है, इसको एक बार जला देंगे दोबारा इसको बना नहीं सकते हैं. मेटल्स है, एक बार यूज होने के बाद उसको जो है दोबारा फिर से वही नहीं हो सकता, लेकिन उसको हम लोग दूसरा फॉर्म में फिर से बना सकते हैं. दैट्स वाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू रिसाइक्लेबल मेटल्स, एग्जाम्पल है इसका, और नॉन रिसाइक्लेबल इसका एग्जाम्पल फॉसिल्स फ्यूल्स है. मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड but cannot be renewed because it takes millions of years to form the iron ore or whatever the mineral resources. Non-recyclable means it cannot be recycled even. Once it is used, we can have waste only, nothing else. So, classification of resources, we will see each of them separately. So the main resources in natural resources I already discussed in previous slides. Resources occurring naturally on our earth are called natural resources.
Example: land, air, water, forest, wildlife, sunlight. Now come to man-made resources. Resources created by humans with the help of technology are called man-made resources. All the man-made things includes man-made resources like bridges, buildings, machines, vehicles. But technically, all resources are natural. Why? Because these all things are obtained by nature and created by human with the help of technology. Human resources, the qualities and quantities of human is called human resources. तो ह्यूमन क्वालिटीज क्या है? ह्यूमन क्वालिटीज है उसका नॉलेज, उसका लेबर, उसका लीडरशिप क्वालिटी, उसका स्किल। सॉरी, क्वांटिटी है उसका लेबर। तो क्वांटिटी जो है वो हेल्प करता है और क्वालिटी दोनों हेल्प करता है इंस्टीट्यूशन को बनाने में और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में, यूटिलाइज करने में। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, make 3 difference between natural resources, man-made resources and human resources. 3 डिफरेंस में एक डिफिनेशन हो जाएगा, एक डिफिनेशन अपना मन से लिखना है और एक एक एग्जांपल दीजिए। अब देखिए, रिसोर्सेज को हम लोग डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम लोग रिसोर्सेज को बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज में क्लासीफाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में हम लोग रिसोर्सेज को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में हम लोग रिसोर्सेज को इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक और रिजर्व में। अब हम लोग ये सब को सेपरेटली देखेंगे। सबसे पहले आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज में हम लोग डायरेक्ट डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि अगर आप डिफरेंस जानिएगा तो याद करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो first you see the definition: resources obtained from biosphere and have life. It consists of all living organisms and organic matter of our system. Biotic resources का example है human beings, flora and fauna, coal, fisheries, livestock. Abiotic resources, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources. इसमें आपका वाटर आ गया, सनलाइट, एयर, रॉक, मेटल्स। अब देखिए डिफरेंस क्या है। बायोटिक जो है वह बायोस्फीयर से मिलता है, इसमें लाइफ होता है। ये जो है नॉन लिविंग, अबायोटिक जो है नॉन लिविंग फिजिकल केमिकल मटेरियल्स है हमारे इकोसिस्टम का। अब बायोटिक में सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। आपका बायोटिक रिसोर्सेज में कुछ रिन्यूएबल है और ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल है। आपका अबायोटिक में रिन्यूएबल और रिसाइक्लेबल है। बायोटिक में आपका प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स आ जाता है। इसमें आपका देखिएगा कि बायोटिक जो है बायोस्फीयर का पार्ट है और ये इकोसिस्टम को शेप करता है, नया आकार देता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बना है। वहीं आपका अबायोटिक रिसोर्सेज जो है वह हमको मिलता है लिथोस्फीयर से, एटमॉस्फेयर से, हाइड्रोस्फीयर से, और ये सारा जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से बना है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में क्या है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। इसका फीचर्स क्या है? ये इन्वायरमेंट में इनफाइनाइट है और अनलिमिटेड है नेचर में। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फिर हम 2 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, और वह 2 पार्ट कौन है? कंटिन्यूअस और फ्लो
एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो कंटिन्यूअस और फ्लो रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज दैट हैव कंटिन्यूअस सप्लाई ओवर द अर्थ, दे नेचुरली रिप्लेनिश देमसेल्व्स। सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब का जो है अर्थ पर कंटिन्यूअस सप्लाई होते रहता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस और फ्लो रिसोर्सेज कहा जाता है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में जेनेटिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिज्म्स एंड देयर पार्ट्स, population or any biotic components of our ecosystem is called biological resources। जैसे कल्टिवेटेड प्लांट्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, पॉलिनेटर्स है, पेस्ट है, ये सब जो है आपका बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें नेचुरल वेजिटेशन या प्लांट रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो कंटिन्यूअस और फ्लो रिसोर्सेज और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में मेन डिफरेंस याद रखिएगा कि जो कंटिन्यूअस रिसोर्सेज जो है वह कंटिन्यूअस इन नेचर होता है, वही बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है वह बायोलॉजिकल सोर्स से ऑब्टेंड किया जाता है। कंटिन्यूअस रिसोर्सेज सेम टाइम रिप्लेनिश हो जाता है तुरंत। ये जो है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज रिप्लेनिशमेंट में टाइम लेता है। अब टाइम लेने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग यूज किए तो तुरंत इसको बनने में कितना टाइम लगेगा। एयर, वाटर, सनलाइट है, वंस यूज्ड दे कैन बी यूज्ड अगेन बिकॉज इट इज इनफिनाइट इन नेचर। लेकिन एक बार हम बायोलॉजिकल रिसोर्स जैसे प्लांट्स और एनिमल को खा लिए तो इसके रिप्रोडक्शन में टाइम लगेगा। अब देखिए कंटिन्यूअस और फ्लो रिसोर्सेज जो है वह बायोस्फीयर और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को मेंटेनेंस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बायोस्फीयर और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो है वह पार्ट है बायोस्फीयर का, वो जो है इसका ग्रोथ, मेंटेन, रिप्रोडक्शन जो है डिपेंड है कंटिन्यूअस और फ्लो रिसोर्सेज पर। और एक एग्जांपल लिख दीजिएगा एक एक डिफरेंस। तो मेनली 3 या 4 डिफरेंस जो है रिसोर्सेज में आप नोट करके रखिए, ये एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को हम लोग प्लांट रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में क्लासीफाई करते हैं। इसका डिफरेंस आप खुद से लिखिए, खुद से बताइए कमेंट में कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस। अब आते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। ये भी नेचुरल रिसोर्सेज का एक क्लासिफिकेशन है। दोज रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड नेचुरली। वाई कैन नॉट बी रिन्यूड? क्योंकि इनका सप्लाई लिमिटेड है, लेकिन कंजप्शन रेट जो है बहुत ज़्यादा है, हायर कंजप्शन रेट है। तो ये रिन्यू नहीं हो सकता, रिप्लेनिश नहीं हो सकता जल्दी, इसीलिए इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में हम लोग मिनरल्स को रखते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को रखते हैं। आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम और भी जितना मेटल है सब मिनरल्स पे आता है और ये नॉन रिन्यूएबल है। फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, आपका ये सब जो है आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। अब देखिए इसका एक फीचर्स है कि इसके बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। लेकिन जो यूज है वह बहुत फास्ट है, फास्टर रेट से यूज हो रहा है, इसीलिए इसका खत्म होने का संभावना जल्दी है। इट कैन बी फिनिश सून, गेट एग्जॉस्टेड सून, इसीलिए इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। रिसाइकलेबल मतलब जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे आप गोल्ड एक बार यूज किए तो उसको फिर से मेल्ट करके फिर से एनी अदर ऑर्नामेंट्स, एनी अदर थिंग्स जो है मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। सिमिलरली आयरन और एल्युमिनियम में भी। बट वंस पेट्रोलियम और कोल यूज्ड दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर मटेरियल्स। तो ये जो है आपका रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल है। इट मीन्स दैट कैन बी वंस यूज्ड एंड कैन बी यूज्ड अगेन, वो जो है रिसाइकलेबल में आ जाएगा। एंड दैट वंस यूज्ड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, वो जो है नॉन रिसाइकलेबल में आ जाएगा। इसका 3 डिफरेंस जो है एग्जाम्पल के साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए। अब देखिए हम ये दोनों के बीच डिफरेंस देख लेते हैं। रिन्यूएबल हम लोग पढ़ लिए, नॉन रिन्यूएबल पढ़ लिए। अब दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? देखिए रिन्यूएबल जो है कैन बी यूज थ्रू आउट इट्स लाइफ, हम लोग इसको लाइफ में हमेशा यूज कर सकते हैं।
नॉन रिन्यूएबल जो है इट विल बी एग्जॉस्टेड वन डे, एक ना एक दिन इसको ख़त्म होना है। रिन्यूएबल जो है अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, इनफाइनाइट क्वांटिटी में है। नॉन रिन्यूएबल जो है उसका क्वांटिटी लिमिटेड है या फाइनाइट है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है लो कॉस्ट है, ये जो है थोड़ा हाई कॉस्ट है। लो कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है मोस्टली। ये जो है इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ह्यूमन को एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इसमें से आपके लिए 2 क्वेश्चन है। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन continuous or flow resources and biological resources. Write any 3 difference between recyclable and non-recyclable resources. Now come to next slide. यह क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स। जैसे आपका घर हो गया या फिर आप जो भी सामान यूज करते हैं, ये सब जो है आपका इंडिविजुअल है। लेकिन एक डिफरेंस है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज पर आपका सोल राइट नहीं है। लाइक आपका व्हीकल्स, वेन एवर गवर्नमेंट वांट्स फॉर पब्लिक यूज, पब्लिक गुड, दे कैन यूज इट। जैसे इलेक्शन में देखिए सबका गाड़ी जो है आपका गवर्नमेंट रख लेता है, उससे जो है ड्यूटी चलता है। आपका फॉर्म है दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इनटू रोड, कन्वर्टेड इनटू रोड इफ इट इज नीडेड बाय गवर्नमेंट और फॉर गवर्नमेंट गुड्स। अब देखिए कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है? जिसमें एक कम्युनिटी के सारे मेंबर, कम्युनिटी एक विलेज का कम्युनिटी हो सकता है, एक अर्बन बॉडीज का कम्युनिटी हो सकता है, एक सोसाइटी का कम्युनिटी हो सकता है, एक कास्ट, क्रीड्स, रेसेज का कम्युनिटी हो सकता है। अब जैसे क्रीमेशन ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, पब्लिक पार्क्स है, ये सब जो है वहाँ रहने वाले सारे लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज में। इंडिविजुअल जो है ऑन्ड एंड यूज्ड बाय इंडिविजुअल, मतलब इसका यूज जो है कोई एक आदमी करता है। और कम्युनिटी रिसोर्सेज में जो है इसका ओनर मेनी होता है और इसको यूज भी जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल करता है। अब देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो है पर्सनल प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स के लिए यह एक्वायर कर सकता है। कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज जो है मोस्टली पब्लिक प्रॉपर्टी होता है या फिर एक ग्रुप के लोगों द्वारा जो है इसको बनाया जाता है उस कम्युनिटी के यूज करने के लिए। तो ये डिफरेंस है, इसको आप लिखने का कोशिश कीजिए। अब देखिए इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो है इट कैन बी यूज्ड बाय अदर टू। अब है तो इंडिविजुअल आपका, लेकिन कोई और भी यूज कर सकता है जब आप उसको परमिशन देंगे। जैसे आपका घर है, अब आपके यहाँ कोई किराएदार रेंटर रहता है, तो आप उसको परमिशन दिए तभी वहाँ रह रहा है। आपका घर आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है, बट अदर्स पीपल आर यूजिंग इट विथ योर परमिशन। लेकिन जो कम्युनिटी रिसोर्सेज जो है उसका यूज ऑल पीपल लिविंग इन दैट कम्युनिटी, ऑल पीपल लिविंग देयर। तो ये आपका डिफरेंस हो गया इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी ऑन्ड रिसोर्सेज में। नाउ नेक्स्ट स्लाइड्स, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या है? ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड रिसोर्सेज इन ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स बिलोंग टू नेशन। तो ये जो सारा रिसोर्सेज है विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री के अंदर, उसको हम लोग नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया नॉटिकल माइल्स, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए व्हाट इज नॉटिकल माइल्स एंड हाउ लॉन्ग, हाउ फार इज इट। ये जो है यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, आप जो है इसको बताइए ये क्या है। अब देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज।
इसका एग्जांपल जो है द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब देखिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये एक नया वर्ड आया है, और एक और है उसको कहते हैं हम लोग टेरिटोरियल वाटर। तो हम ये दोनों टर्म को अभी बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। नेशनल रिसोर्सेज में हम लोग क्या देखें, इट लाइज विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, these resources belong to all country of the nation। ये जो है कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, लेकिन इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो है ऑल कंट्री से बिलोंग करता है। अब जैसे देखिए मिनरल्स, रोड्स अगर एक कंट्री के पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है तो वह जो है नेशनल रिसोर्स है, लेकिन अगर आपका स्पेस है, मिडिल ऑफ द सी है, अंटार्कटिक है, आर्कटिक है, ये सब जो है इंटरनेशनल है, क्योंकि इस पर जो है कोई एक कंट्री का राइट नहीं है। इट कैन बी यूज्ड बाय ऑल कंट्रीज। अब देखिए अगला डिफरेंस जो है हम अभी बताए, एक कंट्री है ऑल राइट्स टू यूटिलाइज इट्स नेशनल रिसोर्सेज इन वाट एवर वे, चाहे जैसे चाहे वो ऐसे यूज कर सकता है नेशनल रिसोर्सेज को। लेकिन इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और वो दिस इंस्टीट्यूशन अप्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। कैसे, ये इंस्टीट्यूशन है क्या, ये इंस्टीट्यूशन है आपका यूनाइटेड नेशंस है। तो जैसे आप देखिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज का एग्जांपल है ये आपका भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये सब रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में इंडिया का। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक रीजन में इंडिया का। तो ये जो है इंटरनेशनल रिसोर्स है आर्कटिक और अंटार्कटिक। वो जो है आपका इंटरनेशनल बॉडी है, उसको यूज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, वही उसका यूज कर सकता है। अब उसी तरह से स्पेस है, तो स्पेस भी जो है एक तरह का इंटरनेशनल रिसोर्स है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस लॉ और सैटेलाइट कम्युनिकेशन कन्वेंशन है वो उसको रेगुलेट करता है। अभी हाल ही में देखिए न्यूज़ में था, इंडिया एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है छोड़ा था, तो क्या नाम था उसका, मिशन शक्ति। तो ये देखिए स्पेस जो है इंटरनेशनल रिसोर्स है, उसका यूज जो है सारा कंट्री कुछ रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है उसके लिमिट में रह करके कर सकता है। तो ये मेनली डिफरेंस है नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स में। अब देखिए एक दो टर्म आया था, टेरिटोरियल वाटर और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टेरिटोरियल वाटर जो है इसके लिए हम लोग को बेस लाइन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। बेस लाइन क्या है, बेस लाइन जो है आपका एक कंट्री का जो वाटर का जो लोवेस्ट लेवल है उसको हम लोग बेस लाइन कहते हैं। मतलब एक कंट्री में जहां आपका लैंड नज़र आता है लोवेस्ट लेवल पे हाई टाइड और लो टाइड के समय, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जो ओशन का बाउंड्री होता है, सी का बाउंड्री होता है, उसको हम लोग टेरिटोरियल वाटर में रखते हैं। और 200 नॉटिकल माइल्स तक जो बाउंड्री होता है उसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रखते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो ये डिस्टेंस का डिफरेंस है, एक है 12 नॉटिकल माइल्स और दूसरा है 200 नॉटिकल माइल्स। लेकिन टेरिटोरियल वाटर में जो है आपका जो रिसोर्सेज है विद इन टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द कंट्री उस पर फुल सॉवरेंटी होता है। फुल सॉवरेंटी में सुप्रीम ऑथोरिटी होता है, उसका वो जो है चाहे जैसे वह यूज कर सकता है। लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ए कंट्री कैन यूज द रिसोर्सेज ऑफ दैट एरिया इन ए लिमिटेड सेट ऑफ राइट्स एंड पावर। वो जो है एक आपका सॉवरेन राइट है, वो आपका सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, सॉवरेन राइट है, जहां आप लिमिटेड एक्सटेंट के साथ और पावर के साथ उस रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपके लिए, एक है आपका डिफरेंस बिटवीन नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, दूसरा है डिफरेंस बिटवीन टेरिटोरियल वाटर एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
अच्छा अब देखिए टेरिटोरियल वाटर आ गया है तो एक टर्म और आता है, एक टर्म तो अभी बताए हम आपको बेस लाइन, इसको आप डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा है कंटिग्यूअस जोन, व्हाट इज कंटिग्यूअस जोन, उसको डिफाइन करने को कोशिश कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, हम बताएं आपको ऑन दिस बेसिस रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 4: पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, फर्टाइल लैंड रिसोर्सेज ऑफ नॉर्थ बिहार। अब देखिए आगे इसको डिफरेंस में हम समझते हैं बढ़िया से, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। इसमें आपका कोल, पेट्रोलियम, रिवर, कल्टीवेशन लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है। इसका डेवलपमेंट डिपेंड्स करता है टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज। देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज का जो है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, मतलब उसमें पोटेंसी है और वह रीजन में अवेलेबल भी है लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं। और डेवलप्ड रिसोर्सेज में इसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हम लोग को पता है और इसका हम लोग यूज भी कर रहे हैं और यह प्रॉपर यूज में अभी है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स जो है दे हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली डिस्पाइट टेक्नोलॉजी अवेलेबल। टेक्नोलॉजी इसके लिए अवेलेबल है लेकिन महंगा है या फिर कोई और कारण है, दूसरा सस्ता सोर्स अवेलेबल है, इसके कारण इसका डेवलपमेंट नहीं किया गया है। और डेवलप्ड रिसोर्सेज का द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी मीन्स क्या? देखिए पंजाब में सेम एग्रीकल्चर लैंड में जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा है और सेम एग्रीकल्चर लैंड में अगर बिहार में प्रोडक्शन देखते हैं तो बहुत कम है, चाहे पर हेक्टेयर राइस देखिए, व्हीट देखिए, तो वो जो है टेक्नोलॉजी और लेवल ऑफ फिजिबिलिटी है। हाउ यू यूज द टेक्नोलॉजी ऑन दैट रिसोर्सेज, उस पर डिपेंड करता है डेवलपमेंट ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज का। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस जो है आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज में, इट कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग सर्कमस्टांसेज। अब अभी यूज नहीं हो रहा है लेकिन इसके पास पोटेंशियल है, फ्यूचर में इसका यूज किया जा सकता है, हो सकता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो या फिर सब कुछ ख़त्म हो जाए, यही आपके पास रास्ता हो यूज करने का, तब आप यूज कीजिएगा। जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी जो है अभी आपके पास इनफ दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी सस्ता अवेलेबल है तो इसका यूज नहीं कर रहे हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। डेवलप रिसोर्सेज में ये जो प्रेजेंट में यूज हो रहा है और इसका डेवलपमेंट डिपेंड करता है द वे हाउ इज इट बीइंग यूज्ड। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, मिनरल्स है, आपका एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसको आप लोग जैसे यूज कीजिएगा उतना ज़्यादा ये प्रोडक्टिविटी देगा। अब जैसे सपोज कीजिए 100 साल पहले आप 100 kg कोल से 1 वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, फ्यूचर में आपके पास और अच्छा टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो 100 kg गोल्ड से 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी कि आप इसको कैसे यूज करते हैं, ये आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है स्टॉक। तो स्टॉक क्या है? materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but we don't have the appropriate technology to access and transform these। अब जैसे देखिए वाटर है, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। हाइड्रोजन जो है रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन पोल्यूटिंग भी है, इको फ्रेंडली भी है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी अमाउंट में यूज कर सके। अब देखिए कुछ मिनरल्स जो है वह भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं।
तो ये हो गया स्टॉक, इसमें पोटेंशियल है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आते हैं हम लोग रिजर्व में। रिजर्व क्या है? इट इज द सबसेट ऑफ अ स्टॉक विच कैन बी यूज्ड विथ द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी we have but are not being used, which can be used in future if needed। देखिए, रिजर्व और स्टॉक, स्टॉक का एक छोटा सा पार्ट है रिजर्व। सबसेट का मतलब वही होता है एक बड़ा पार्ट का छोटा पार्ट। तो रिजर्व का यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? या तो हमारे पास कंपेरेटिवली अदर थिंग्स अवेलेबल है और सस्ता में, या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे आसानी से इसको यूज किया जा सके। इसका एग्जांपल है आपका वाटर जो है रिवर फॉल्स डैम्स में, उसको हम लोग प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं पे यूज हो रहा है, लेकिन जितना यूज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। फॉरेस्ट है, लैंड है, इसका भी जो है प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है। तो अब आप देखते हैं दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्स के बीच। स्टॉक रिसोर्स जो है ये अभी तक इसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। रिजर्व जो है आपका ये यूटिलाइज हो सकता है, इसका टेक्नोलॉजी हमारे पास है, लेकिन अभी यह भी स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टॉक रिसोर्सेज के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, रिजर्व रिसोर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, स्टॉक रिसोर्सेज को फ्यूचर में यूज किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ा, सारा रिसोर्स ख़त्म हो गया। रिजर्व रिसोर्स जो है ये भी फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में अगर सर्कमस्टांस चेंज हुआ तो इसको भी यूज किया जा सकता है। कोल एनर्जी जो है एकदम ख़त्म होने लगा तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी पे जोर दे रहा है, अभी भी दे रहा है गवर्नमेंट। तो ये जो है मेनली दो डिफरेंस है। आप एग्जाम्पल में दोनों का लिख सकते हैं तो एक एक डिफरेंस और हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज के भी डिफरेंस को क्रिएट करने का, बनाने का नोटबुक में। ये जो है आपको याद करने में हेल्प करेगा। अब क्या है, नेक्स्ट वीडियो जो है आपका रिसोर्स प्लानिंग पर होगा। इन केस एनी प्रॉब्लम you can write in comment section. Your comment is our inspiration. Thank you.